use of static and instance control flow. Mhm. So I mean, see, Is in the it whole in the whole Java, you will get two things only. One is static, one is instance. instance? So I mean, we talk about instance variable, right? We talk about Static. instance Static. method also, and we talk about Yes. static variable and static method, right? So if we say कि our information can be, I mean, we can declare in a static form. Functionality also we can develop in a static form, right, Chan? Yes, sir. So functionality means what? Method, right? Method we can declare. And block also we can declare in the static, block also we can declare in the instance. If all things come simultaneously, then what would be the execution flow of them? अगर ये सारी चीजें एक साथ आपको यूज, प्रैक्टिकल यूज तो अलग अलग चीज का अलग अलग है. Like if I will say the use of static variable, Chand, you already familiar what is the use of static variable, right? Yes, sir. The use of static method, without Yes, sir. creating I the am object, also we can access, right? by The using class name. correct. By using the class name, we can uh, access. The use of static block. Can you tell the use of static block? Yes, sir. It automatic calls when we load the class. So at the time of class loading, it is going to execute. So anything we want to execute at the time of class loading, we can use a static block. तो आपको इन तीनों चीजों का अलग अलग में different meanings you got it right. Now Yes, come sir. to instance. You know what is the use of instance variable, Chand? What is the use of Instance instance variable? instance variable. We can create object by creating The the object. va- We can the value of instance variable varies from vary object object to to object. object. Correct. I mean, in our class there are so many students, and all students are having individual information, right? So that kind of information we can store into the instance variable, right? Now, if I will ask you, what is the use of I mean, how we can use the instance method? How we can use the and what is the use of instance method? So method is a Functionality. functionality of the object. See, if I'm asking what are the variables, what we stored in the variables, Chand. So information we We, store into the variables, right? yes, sir. Now, if I will ask you why we create the method, so any object's functionality, if we are going to create, we use the method, right? Yes, sir. So the functionality is also, I mean, what I can say, we want to access through the object. The functionality we want to access through the Object. object, and so how we can access that? By using the By creating object, object. we can access to them. Correct. And what is the use of instance block? Instance, when we are creating instance block, so it also work during the uploading the class. No. While you are creating the object, now this is going to execute. Like I told, instance static block will execute at the time of class loading, and And instance block will execute at the time of object creation. Okay. So okay. हम लोगों को इन सब का अलग अलग मीनिंग पता लग गया, right? Now, if I Yes. will say, what will happen if all things, multiple things are coming simultaneously? एक साथ आप एक प्रोग्राम में लिख रहे हो, then what will be the execution flow for it? तो उसके लिए फ्लो क्या होगा? कौन सी चीज कब एग्जीक्यूट होगी? तो अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग है, तो इन फ्यूचर इफ वी वांट टू पुट दी स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक मेथड, तो हमारे दिमाग में एक क्लियर चीज होगी कि कौन सी चीज कब एग्जीक्यूट होगी, राइट? So according to that, we can give the implementation of it.
अगर वन टाइम एग्जीक्यूट कराना है स्टैटिक ब्लॉक में लिख दो, राइट, and you want to implement that things by accessing the class name you want to execute, तो आप उसको स्टैटिक मेथड के अंदर लिख दो, राइट। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज, आई मीन ऑल द प्रैक्टिकल यूज भी नो, अलग अलग चीजों का अलग अलग प्रैक्टिकल यूज है, बट अगर ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं इन अ सिंगल प्रोग्राम, देन व्हाट विल बी द एग्जीक्यूशन फ्लो फॉर इट। सो दैट एक्चुअली नो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो static control flow, we should know instance control flow, so that is. So I hope you got the answer, Chand. Yes, sir. Sir, one more thing. I was saying some programs. There is a mention without using man method. Is it possible to print some print statement? No. So I was trying, but I could not do. Yeah, absolutely. I mean, in a notes it is written, but that is applicable until 1.7 version. अगर जावा का वर्जन 1.7 तक यूज कर रहे हो तो दैट वाज द पॉसिबल कि विदाउट राइटिंग द मैन आल्सो यू कैन प्रिंट सम स्टेटमेंट। और उसके पीछे थॉट क्या था, व्हाट वाज द थॉट? थॉट वाज कि क्लास लोडिंग के टाइम पर स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूट करा लो, उसके बाद जेवीएम को शट डाउन कर दो। When JVM start searching the main method, before that it is going to shut down. But this also has been removed from Java 1.8. तो ये Java 1.8 से ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग, okay? So any other question? I'm going to share my screen now. So when we talk about the constructor, it also called implicitly. It also called implicitly, yes. Zero param constructor is going to call implicitly. So no, create. It is going to create implicitly, ना? Zero param constructor is going to create implicitly, है ना? So when we are using static control flow and instance control flow, and there is also constructor available. So what was the priority of constructor? Constructor is available. Okay. I mean, see, if it is available, then constructor is going to execute only when we are going to call it. Constructor किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब हम उसको कॉल करेंगे, राइट? जब हम उसको जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सी लेट मी शो यू, यू आर सेइंग कि एनी क्लास है ना कंटेन zero param constructor, right? Even though it is contain zero param constructor, but this is going to execute a public static void main. Okay, so let me put in this way, string array of args. तो ये आपका कब एग्जीक्यूट होगा? अभी तो एग्जीक्यूट होने वाला है नहीं। जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, when you are going to create the object test is equal to new test. Now actually you have call. यहाँ से आपने क्या किया है? कंस्ट्रक्टर को कॉल किया. You call this constructor by putting the new keyword. Then only this is going to execute. सर आपने बताया अभी कि इंस्टांस जो हमारा कंट्रोल फ्लो है, इंस्टांस ब्लॉक भी जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कॉल होगा। करेक्ट। और ये भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कॉल होगा। तो पहले कौन सा कॉल होगा? आई थिंक आपका ये होना चाहिए, ये क्रिएट, ये मतलब ये कॉल होते समय इसका फ्लो अभी नेक्स्ट इसमें ना स्टैटिक के बाद इसका सीखने वाले हैं। बी अबाउट टू सी वंस स्टैटिक विल कंप्लीट ना, तो उसके जस्ट बाद आएगा आपका कि इसमें से कौन सा ब्लॉक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। बट लेट मी चेक इट,
I think पहले instance block execute होना चाहिए, but let me try. System.out.println, and let me put here something, instance block. Let me put here something. System.out.println. I am putting here constructor. Okay. So let me save it. Jan 2023. सर वो सेमीकॉन लगा दे सर, इंस्टेंस ब्लॉक में भी सेमीकॉन लगा देना सर। इंस्टेंस ब्लॉक में मैं ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम डूइंग दैट। टेस्ट डॉट जावा, आई एम गोइंग टू सेव इट, replace, going to save it, let me run it. So chain java c test.java, java test. Instance block is going to execute before the constructor. Okay, iska flow just we we'll see after this. Okay. Got it, Chan? Got we it, are going sir. to we are going to see very soon. So let me open on which page number we are. 282. How it happened? Page number 223. Oh, it's my bad. Okay. So this all I think we did it. So what I want ki everyone please try to verify how this static control flow is working. Okay. स्टैटिक कंट्रोल फ्लो इन पेरेंट चाइल्ड, तो पेरेंट चाइल्ड का भी स्टैटिक कंट्रोल फ्लो क्या रहने वाला है, इन टॉप टू बॉटम रहने वाला, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा. दिस विल आल्सो एग्जीक्यूट इन टॉप टू बॉटम. द नेक्स्ट थिंग इज हियर इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो. तो इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो वी विल सी. तो इसके अंदर क्या क्या लिया है इन्होंने. वन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल दे हैव टेकन int x is equal to 10 and there is a instance block, instance block they have taken. This is called instance block. इसका कोई भी नाम नहीं है, तो this would consider as instance block. Inside from instance block they have called the m1 method. So where is this m1 method is here. Okay, m1 method is here. Even though without creating the object we are able to we are going to call here m1 method. So after this calling this m1 method, and this will print some y. Okay, y. But where is this y declared? Where is this y declared? In a down. Int y is equal to 20. Okay. Then FIIB it is going to print. Okay, it's fine. Constructor is not going to constructor is not going to execute from here until we are going to create the object of it. So once we will create the object, there is a ये automatic तो अभी नहीं होगा. This will execute only when we are going to call, when we are going to create the object of it. So once we create the object, instance block will execute. Inside instance block we are calling m1, and then we are going to click here FIIB. So this has been first it is going to print the 0, then it is going to print the FIIB. After that 0 param constructor is going to call. So what I am hoping here, SIIB. From where this SIIB came? Where this SIIB? Okay. There are two instance block. I just skip it. Two instance block.
First this will execute, after that another instance block will execute SIIB. Then what will happen? Constructor is going to execute, then main is going to execute. Okay, so instance control flow demo. Let me create one program here. Instance control flow demo. Instance control flow demo, October, November. So is there any doubt to understand it? Instance में इतना problem है नहीं, क्योंकि instance is a very straightforward. Whenever we are going to create the object, instance block is going to execute. All the instance block are going to execute at the time of object creation. Once completing instance block, constructor will execute. And after constructor, any method we want to make it execute, we have to call by using the object reference, and that is going to execute. Okay. So the package we are discussing here: flow control, execution flow. Okay. Some parent class they have taken. Okay. They have taken some parent class. Parent class they have taken, but it's okay. Yeah, also just we can take. And one of main method inside it. Parent class we have taken. Okay. So we are going to create the object of it. Parent P is equal to new parent. Okay. We have created the object of it. Now what we are doing, and after creating the object of it, one of message we are logging here. Main message हमने यहाँ log कर लिया. Okay. So instance block का execution, I mean the flow of instance will start from the main method. Okay guys, ये कोई class loading पे execute नहीं होगा. This is going to execution is going to start from the main. So when this is going to start, let me tell you. तो यहाँ पे क्या करते हैं? What we are going to do? एक instance, एक ऐसे ही है ना, variables we are going to create. What variable they are going to create here? Int x is equal to 10. X is equal to 10. Okay. And यहाँ पे एक instance block ले लेते हैं. And instance block से we are going to call m1. m1 method को call किया. Okay. And we are logging here some message. What message they are logging? FIIB. Some message they have logged. इसका body हम लोग देते हैं इधर. m1 की body we are giving. What is a signature for this m1? Let me see. Public void m1. Public void m1. Public void m1 method का method की body just we are giving ना. यहाँ पे क्या प्रिंट कराया इन्होंने? y. ओके, सॉरी, वैल्यू ऑफ y प्रिंट कराया, लेकिन y एग्जिस्ट नहीं करती है. तो आफ्टर दिस मेन मेथड वी आर डिक्लेयरिंग y एज इंस्टेंस वेरिएबल. इंट y इज इक्वल टू 20. ओके, जस्ट वी आर डिक्लेयरिंग द 20 हियर. ओके, so and one more instance block they have declared before this by
before this by one of more instance block is declared here. तो इसके अंदर जो मेंशन किया है that is SIIB. It is just kind of message. Don't worry about the meaning of it. Is there anything do we need to mention? No. एक इसमें parent constructor भी लिखा. Zero param constructor we are going to create. So is Pavan in this class? Pavan इस क्लास में है क्या? यस सर। हाँ जी। तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर क्या हो? थोड़ा सिंटेक्स बोलो प्लीज, स्पीक द सिंटेक्स फॉर दिस। पेरेंट्स और पैरामीटर 0 है, 0 बन जाएगा। इज इट फाइन? ओके सर। ओके, सो इसमें मैसेज क्या लेना है जी हमें? ओनली कंस्ट्रक्टर वी आर टेकिंग। Constructor we are taking. So guys, let me okay, I think Chand will help. Chand, सबसे पहले क्या execute होगा? Execution from where execution is going to start? Please tell me. सबसे पहले चेक करेगा सर कोई स्टैटिक ब्लॉक तो नहीं है, और अगर स्टैटिक ब्लॉक में लेगा तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव सच, राइट? वी डोंट हैव सच। तो नाउ सबसे पहले क्या करेगा, ये x के अंदर वैल्यू डाल देगा 10, और उसके बाद आ जाएगा ये इस पे मैन मेथड पे। मैन मेथड पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही इंस्टांस वेरिएबल जो है हमारा, ये इंस्टांस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फिर m1 को कॉल करेगा ये, और m1 को कॉल करने के बाद कंट्रोल m1 मेथड पे आ जाएगा, और y की वैल्यू जो है यहाँ 0 प्रिंट कर देगा। तो अगर हम इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करें, सो कैन यू टेल द आउटपुट, व्हाट आउटपुट विल कम? फ्लो क्या होगा उसका? तो सबसे पहले 0 आएगा आउटपुट। 0 आएगा। 0 किसका वैल्यू है? 0 0 y की डिफॉल्ट वैल्यू है। y की डिफॉल्ट वैल्यू 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं इस पर इंस्टांस कंट्रोल ब्लॉक पे। तो फिर उसके पहला बाद वाला fi, ये वाला ब्लॉक है ना, राइट? यस। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा FIIB। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। नहीं, इसके बाद एक और आपका इंस्टेंस ब्लॉक है, अनदर इंस्टेंस ब्लॉक। यस सर। SIIB। उसके बाद SIIB स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब ये हमारा मैन मेथड कॉल होगा। नहीं, सॉरी, इसके बाद ये स्टार्टिंग मैन से ही हुई है। स्टार्टिंग मैन से ही हुई है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो स्टार्टिंग मैन से ही हुआ। ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ उससे पहले कंस्ट्रक्टर 0 पैरम कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले इसके इंस्टेंस ब्लॉक जितने भी हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि फ्रॉम द इंस्टेंस ब्लॉक हम लोगों ने अभी क्या है, आई मीन जस्ट वी आर कॉलिंग दिस m1 मेथड। सो बाई वैल्यू वी गॉट, उसके बाद it will next line it is going to complete, then another instance block is going to complete, then object to create यहाँ पे हो ही गया है हमारा। after that the constructors is going to कॉल होगा। okay, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब कंस्ट्रक्टर के बाद हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट है मैन वाला, ये चलेगा। मेन एग्जीक्यूट हुआ, ओके। अब y में 20 वैल्यू डाल देगा। ओके, तो यहाँ पे एक काम भी कर लेते हैं हम लोग, p.m1 को कॉल भी कर लेते हैं। नाउ टेल मी। ठीक है, p_m1 को कॉल करेंगे तो ये हमारे वैल्यू 20 दे देगा। द थिंग्स विल कम, ओके। सो लेट मी ट्राई टू रन इट। अभी इसको रन करते हैं और अपना आउटपुट मैच करते हैं, ओके।
Is it correct? Yes, sir. Okay. It's So correct. I think we understood कि ये कैसे काम कर रहा है. Anyone have any question related to this? इसका मतलब ये स्टार्टिंग में इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है बाई को, है ना, राइट? इट इज गिविंग द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बाई. व्हाट आई थिंक ये सबसे पहले है ना आइडेंटिफाई करता होगा इंस्टेंस वेरिएबल्स को, ना. अभी इसका फ्लो भी हम लोग देखते हैं. वी विल सी दी फ्लो. The flow also we going to see. Yeah, November batch, okay. Okay. Output इसका क्या आया है? What we got the output? So I am giving here. Okay. तो प्रदीप इसका फ्लो आपको समझ आया कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? आउट सेगमेंट. यस सर. ओके. इससे पहले इंस्टेंस फ्लो स्टैटिक फ्लो का प्रैक्टिस आपने किया प्रदीप? प्लीज डू दी प्रैक्टिस, अदरवाइज थोड़ा सा हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग विल बिकम्स बेटर. ओके. अगर नहीं किया है तो प्लीज डू दी मेक प्रोग्राम और उसको फ्लो समझने की कोशिश करो. आउटपुट से आप एटलीस्ट बाय सीइंग द आउटपुट यू कैन ऑब्जर्व सबसे पहले क्या चीज एग्जीक्यूट हो रही. ओके. ट्राई टू. यस सर. So now I think Vivek, is there any question? Kajol? No, sir. Yes, Kajol. हेलो सर. Yes. सर पहले सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन मेथड के बाद आपका फिर हम गए ऑब्जेक्ट पे. लाइन नंबर 40. हाँ, नंबर 14 पे. हाँ, फिर हमने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ ये पेरेंट पी इक्वल टू न्यू पेरेंट. फिर देन हम गए जितने भी हमने इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया है. अभी इंस्टेंस वेरिएबल आई डोंट नो कि इनका आइडेंटिफिकेशन तो कब होता है. ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही होता होगा. बट अभी इस पे हम लोग अभी जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर जितने भी इंस्टेंस ब्लॉक होंगे ना, दोज आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इंस्टेंस ब्लॉक. तो कितने इंस्टेंस ब्लॉक हैं इसके अंदर काजल? हाउ मेनी इंस्टेंस ब्लॉक इन दिस? बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा इसको. आप थोड़ा लाइन नंबर बोलना मुझे. इंस्टेंस ब्लॉक कहाँ कहाँ पर है? इंस्टेंस ब्लॉक कुछ ऐसा होता है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपका फोकस जाएगा इसकी तरफ. ओके. ये जो दिख रहा है ना, इसका कोई नाम नहीं. ठीक है. इंस्टेंस ब्लॉक. तो एक तो हो गया लाइन नंबर 5 से लेकर 8 तक. गुड. दूसरा हमारा किधर है? यहाँ पे है लाइन नंबर 21 से 23. ये दिख रहा है. दो इंस्टेंस ब्लॉक हैं इसके अंदर. तो सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे, वो भी एक सीक्वेंस में. पहले कौन सा इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? ये वाला. ओके. इसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? व्हाट इज फर्स्ट लाइन इज रिटन हियर? M1. गाइज आप लोगों ने आई डोंट नो ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, इंस्टेंस मेथड को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही कॉल कर सकते हैं, राइट गाइज? बट देखो यहाँ पे आप लोग बगैर रेफरेंस के हम लोग कॉल कर पा रहे हैं क्योंकि ये इंस्टेंस ब्लॉक से कॉल हो रहा है, इसलिए. ओके. इंस्टेंस ब्लॉक से कॉल हो रहा है. सबसे पहले M1 कॉल होगा, लेकिन M1 तो कॉल हुआ. M1 वेयर इज दिस M1? हियर. अभी बाई को कोई वैल्यू इन्होंने इनिशियलाइज नहीं किया. They did not initialize the by. Default value JVM ने initialize की होगी by को. What value they have initialized? What value they have initialized to by? 0. तो इसके अंदर इसने क्या किया यहाँ पे? First time they are going to print here 0. और उसके बाद फिर दोबारा से अभी ये complete नहीं हुआ है. Whole instance block is not complete. Line number 7 पे FIIB statement execute होगी.
सो ये 0 और FIIB एग्जीक्यूट हुआ। तो पहले अगर मैं इसको लिखता हूँ, सबसे पहले आपका इधर आया, आई मीन दिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, देन दिस इज गोइंग टू आई मीन एग्जीक्यूट, एंड उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, दूसरा सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। कहां पर है, ये रहा SIIB। वंस कंप्लीटिंग दिस, दिस विल कम टू, अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ प्रॉपर, ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो थर्ड नंबर किसका आता है, आई मीन थर्ड नंबर विल कम दी कंस्ट्रक्टर, 0 पेरम कंस्ट्रक्टर, and once this constructor will execute, guys can you mute yourself please, some background noise, okay, thank you. So after completing the constructor again it will come in a main, और मेन में इन्होंने मेन को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद p.m1 दोबारा से कॉल किया, देन तब क्या हुआ इसका, इसको 20 वैल्यू क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई, देन इट इज इनिशियलाइजिंग 22 बाई, और y की वैल्यू इन्होंने क्या प्रिंट कर दी, 20, they have printed the value of y is 20. I just I'm curious to know x की वैल्यू ये क्या प्रिंट करेगा, और x वैल्यू 0 ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो this should print the 0. सर 0 नहीं करेगा, 10 करेगा। Come on, here it is saying 0 और उसके बाद 10, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस में इसको जो मिलता है इंस्टेंस वेरिएबल को, ये why it is assigning 10, the meaning, अगर इस बाई को मैं इधर लिखता हूँ, if I am writing this बाई को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, if I am writing here, तो दोनों का वैल्यू अब क्या होना चाहिए, सॉरी अभी 0 नहीं आना चाहिए ना, दोनों का 10 20 आना चाहिए, राइट, यस 10 20 इज कमिंग। इसका मतलब द मीनिंग ऑफ इट कि सर हमारा वेरिएबल पहले चल जाता है, जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करा है, इनिशियलाइजेशन अगर उसे पहले मिल जाता है तो पहले उसको मिल जाएगा, राइट, इवन दो इन द लास्ट इफ वी आर डिक्लेयरिंग, इसको अगर लास्ट में डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो हैपन्स, और उसको डिफॉल्ट वैल्यू भी इनिशियलाइज हो जाती है, बट द एक्चुअल वैल्यू इनिशियलाइजेशन तब होगा जब उसको पहले स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। सो हियर आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो हैपनिंग, आई थिंक, एंड एग्जीक्यूशन आई मीन असाइनमेंट इज ऑल्सो हैपनिंग, बट इट्स ओके। नाउ लेट मी अंडरस्टैंड कि ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर, और प्रोसेस क्या होगी। Whenever we are creating an object, the following sequence of event will be performed automatically. Identification of instance member from top to bottom. Top to bottom instance members का identification होगा। Instance member के अंदर I think है ना, instance block, instance variable, everything comes, right? हेलो सर। Yes. सर एक बार आप स्टार्टिंग से बता देंगे, ये पहले तो मेन मेथड, फिर ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद नहीं, ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन्होंने जो प्रोसेस है ना इसका, सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टेंस मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इंस्टेंस मेंबर में आपके आ जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस ब्लॉक है, आई मीन व्हाट आर द इंस्टेंस थिंग्स। तो इंस्टेंस मेंबर का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले है ना, स्टार्टिंग में आइडेंटिफिकेशन विल हैपन, देन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल असाइनमेंट, उसके बाद होता है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल असाइनमेंट एंड इंस्टेंस ब्लॉक्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सर ऊपर जो प्रोग्राम है, जो इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो का नोट्स में, इसमें पहला नंबर लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टिक आर्ग, उसके बाद सेकंड में आता है आपका उसमें पेरेंट भी इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है
ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय क्या हुआ है, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, ये आपका थर्ड पे आ गया, ये वेरिएबल्स का जो इंस्टेंस वेरिएबल का जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूट हुआ, int x इक्वल टू 10, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, 10 असाइन हो गया, राइट। देन फोर्थ पे आपका ये जो इंस्टेंस ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ है, ओके। m1 इसके अंदर से m1 को कॉल किया, तो you know m1 is called from this fourth with this m1 here, m1, okay. Then this is going to print the default value of y, है ना, जो ये 20 अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है इसमें, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इट इज गोइंग टू प्रिंट। यस, एनीवन सेइंग समथिंग? सर इस प्रोग्राम के मुताबिक जो वैल्यू असाइन हो रही है x को, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हो रही है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हो रही है, राइट। क्योंकि उस पर तीसरा नंबर पड़ा हुआ है और Correct. हमने चेक करा अभी कि अगर हम इसे स्टैटिक में डाल दें तो ये पहले ही दे देगा वैल्यू, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो फिर आपका हो जाता है क्लास लोडिंग के टाइम पे ही आपका, आई मीन यू नो आइडेंटिफिकेशन एवरीथिंग हैपेंस एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो स्टैटिक का स्टोरी डिफरेंट है, इंस्टेंस का स्टोरी इज डिफरेंट, ओके। ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है ये तो दोनों में से किसी के अंडर नहीं आ रही है। वेरिएबल डिक्लेरेशन दोनों के नहीं आ रहा है। डिक्लेरेशन ये इंस्टेंस है और वो आपके स्टैटिक है। अच्छा, ठीक। इनको जो वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगा वो होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। ओके सर, ओके, है ना, बिकॉज वी कॉल देम कि ये ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स हैं। ऑल इंस्टेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ओके सर। इनका एसोसिएशन ऑब्जेक्ट से रहता है। सर ये आपने क्या लिख रखा है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ब्रैकेट में RIWO। RIWO किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। x इक्वल टू 0, RIWO, y इक्वल टू 0, RIWX। ये इसका इन्होंने RIWO को कहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ना, इससे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ना। We talk somewhere about it. Wait. ये जो दिख रहा है ना RIWS, if a variable in read indirectly write only state, अगर read indirectly write only state में है, then we can't perform read operation directly, otherwise we will get compile time error saying illegal forward reference exceptions we will get। इसका मतलब ये है, the meaning of it, static int x is equal to 10। तो इसमें क्या किया, स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, x की वैल्यू प्रिंट कराई और यहाँ पे JVM को शट डाउन कर दिया, क्योंकि अभी बगैर मैन के तो ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है, बट दैट्स ओके। लेकिन आप यहाँ पे देखो, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर x को प्रिंट कराया तो इसने कौन सी एरर दे दी, इलीगल फॉरवर्ड रेफरेंस। क्यों दे दिया, क्यों दे दी? क्योंकि x के अंदर ये मान के चल रहा है जब इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो इसमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं है, अभी नथिंग इज असाइन इन दिस। तो अभी ये किस में है, ये आपका रीड इनडायरेक्टली राइट ओनली स्टेट में है। ये स्टैटिक के केस में क्या करता है, इलीगल फॉरवर्ड रेफरेंस एक्सेप्शन देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे इसको, इफ यू विल ऑब्जर्व हियर इंस्टेंस के केस में, हालांकि इन्होंने यहाँ खूब सारा एक्सप्लेन किया है, बट इट्स ओके, लेट मी कम इन इंस्टेंस। इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस वेरिएबल्स अगर आपका रीड इनडायरेक्टली राइट ओनली स्टेट में है तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, और y की भी वैल्यू क्या होने वाली है, 0। इवन दो हमने उसको 10 इनिशियलाइज कर दिया है, ओके, तो ये वेरिएबल्स की स्टेट है। इफ इट इज इन RIWO स्टेट में है अगर ये वेरिएबल, तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होगी इंस्टेंस वेरिएबल को 0, और y को डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0। अगर इसमें स्टैटिक होता तो उसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती, और उस केस में वो क्या करता है, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। तो आई होप
आप अगर इस पर ऑब्जर्व किया आपने कि नहीं किया कि y के अंदर, सॉरी M1 के अंदर y को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहे हैं, कहां से, इंस्टेंस ब्लॉक से। तो अभी जो y की जो वैल्यू है वो क्या है, इसमें है, RIWO स्टेट में है। तो y की वैल्यू इसने क्या प्रिंट किया, व्हाट इट इज प्रिंट, 0। ओके, इट प्रिंट दी 0। इसकी जगह अगर स्टैटिक ब्लॉक होता उस केस में ये क्या करता, एक्सेप्शन थ्रो कर देता। ठीक है, अगर उसको ओके, लेट मी ट्राई टू डू वन थिंग हियर, लेट मी ट्राई टू डू वन थिंग हियर। एक एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे और करता हूँ, इसके अंदर मैं ट्राई करता हूँ y की वैल्यू को एग्जीक्यूट कराने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू में यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने की ट्राई करता हूँ। तो हियर इट इज गिविंग दी, यहाँ पे सेम एरर दे रहा है, आई गॉट इट। तो अगर ये आपका इसमें है ना, क्या बोलते हैं इसको, आई गॉट दिस पॉइंट, कि अगर ये आपका RIWO स्टेट में है, RIWO स्टेट में है, लेकिन ये आपका किस में होना चाहिए, मेथड के अंदर। RIWO स्टेट में अगर मेथड के अंदर ये वेरिएबल इस स्टेट में है, तब x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 होगी। और दैट इज द सेम हैपनिंग विद द स्टैटिक वेरिएबल आल्सो, उसमें भी यही हो रहा है। तो अगर ये क्या है, वेरिएबल की स्टेट है, उसको क्या बोलते हैं काजोल, वेरिएबल की क्या स्टेट है, जब कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है तो JVM इसको डिफॉल्ट 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है। बट इवन दो वी हैव इनिशियलाइज इट, बट स्टिल अभी अगर ये इस स्टेट में है, अब इस स्टेट में कब होगा ये, इस स्टेट में कब होगा कि इनिशियलाइजेशन से पहले हम उसको एग्जीक्यूट करा लें किसी इंस्टेंस मेथड को, जैसे मेन मेथड के अंदर y की वैल्यू लिखी हुई है, M1 के अंदर y की वैल्यू लिखी हुई है, और अभी जो वैल्यू इसकी क्या प्रिंट करेगा, ये 0। लेकिन इसी M1 को अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल करोगे तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये जो भी इसमें वैल्यू 20 आ गई वो प्रिंट करेगा। यस काजल। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले सबसे पहले मेन मेथड में जाता है, तो पहले मेन मेथड क्यों, दूसरा मेथड क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? JVM के अंदर ये लिखा हुआ ही है कि सबसे पहले JVM किसको एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले JVM किसको एग्जीक्यूट करेगा, मेन को, मेन मेथड को। आपको आगे जरूरत नहीं पड़ने वाली मेन की, जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट करोगे। अभी मेन की हेल्प से, अगर आप ऐसे बोलोगे तो मेन ने हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जिससे हम जावा के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करके सीख सकते हैं कि एक्चुअल में जो हम सोच रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हम जो करेक्ट है कि नहीं, वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये मेन ना हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा उसमें, इसमें ना जावा के कॉन्सेप्ट को पढ़ना समझना ही बड़ा मुश्किल होगा, आप प्रैक्टिस करोगे कहाँ पे, राइट। तो जावा वालों ने इंटेंशनली मेन JVM के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन दे दिया है कि मेन है वो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। अब मेन के अंदर से आप जो भी लिखोगे आप उसकी फंक्शनलिटी चेक कर सकते हो। तो ये बेसिकली इट इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा। फिर सर आपने सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट को दिया है, सर सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? मैं और कोई से मतलब क्या आपका, और हम लोगों को जैसे करना क्या है, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं काजुल, करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंस, फ्लो ऑफ इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंस का फ्लो हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, इंस्टेंस का फ्लो हमेशा किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से। तो इसलिए ऑब्जेक्ट बनाया। इससे पहले अगर आप देखोगे तो स्टैटिक में ऐसा नहीं था। स्टैटिक ब्लॉक अगर हम यहाँ पे देख रहे थे तो स्टैटिक का जो एग्जीक्यूशन है, स्टैटिक किधर गया, स्टैटिक जो ब्लॉक का एग्जीक्यूशन है, स्टैटिक का जो अगर आप देखोगे तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, दिख रहा है आपको, डिड वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट हियर? स्टैटिक के अंदर हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होती है क्या? क्लास के नाम से कॉल हो जाता है, सेम क्लास में तो डायरेक्ट कॉल हो जाता है। तो इंस्टेंस के लिए जब भी इंस्टेंस की बात करेंगे उसकी स्टोरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन से ही स्टार्ट होने वाली है, रिमेंबर दिस।
The story for instance variable, instance block, instance method will start from object creation. काजुल समझ आया आपको? इंस्टेंस सर समझ तो आ रहा है, लेकिन सर फ्लो समझ नहीं आ रहा। जी पहले तो मेन मेथड है इंस्टेंस में, फिर देन ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर कहाँ जा रही है समझ नहीं आ रहा सर। ये बेसिकली इन्होंने लिख भी रखा है सब कुछ है ना। अब ये क्या है हमारा इंस्टेंस, सॉरी सर नंबर तो समझ में आ रहा है जी, ये तीसरा है चौथा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा इसके बाद इस पे क्यों जा रहा है ये, क्यों जा रहा है। वो उसका नेचर है कि वो जो नंबरिंग दी है ना वो वैसे ही जाएगा। ये इसका फ्लो है कि सबसे पहले, अब एक चीज मुझे आप बताओ, अभी सचांद ने क्वेश्चन किया था, कंस्ट्रक्टर भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कॉल होता है, ठीक है, और इंस्टेंस ब्लॉक भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कॉल होता है। जब दोनों सेम टाइम पे कॉल होते हैं तो पहले कौन कॉल होगा? वहां भी तो आगे पीछे होना चाहिए ना थोड़ा। यस सर। क्योंकि सिंगल थ्रेड है तो इसमें चांस है ही नहीं कि आपका एक साथ दोनों एग्जीक्यूट हो, एक पहले होगा एक बाद में होगा। तो अब इसमें हमें समझना है कि कंस्ट्रक्टर से पहले इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, या हम ऐसा बोले ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे बिफोर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट वी वांट टू डू सम एक्टिविटी। तो उसके लिए इन्होंने प्रोविजन दे दिया कि आप इंस्टेंस ब्लॉक में जो भी लिखोगे वो कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। तो फॉर दैट पर्पज इट इज गिवन। क्यों जा रहा है ये, कोई ऐसा अभी बिजनेस की बात कर ही नहीं रहे, वो क्या बोलते हैं काजल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल कोई ऐसा बिजनेस रिक्वायरमेंट की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। जस्ट हम उसका फ्लो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते समय। अब सर फ्लो समझ में आना चाहिए ना। कोई हमारे पास अगर प्रोग्राम है तो अगर पूछे हमसे जो पहले कौन सा होगा फिर कौन सा होगा, तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी क्लियर नहीं हो रहा सर सही से। अभी क्लियर तो देखो, प्रैक्टिकल जब करोगे ना, जब आप इसको टाइप करोगे, प्रोग्राम को रन करोगे, तो आपके सामने ये आउटपुट होगा। तो इस आउटपुट को जब आप ऑब्जर्व करोगे और इन नंबरिंग से मैच करोगे, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। क्योंकि हर चीज देखने से नहीं आएगी, एक बार उसमें इन्वॉल्वमेंट तभी होगा जब आप प्रोग्राम बना के इसको रन करके देन यू विल मैच कि सबसे पहले इसने 0 प्रिंट क्यों किया, वाइट प्रिंट 0, वाई की वैल्यू तो मान लीजिए, चलिए सर जैसे मेरा ये क्वेश्चन है ना, जैसे मान लीजिए मुझे कार ड्राइव करना है, ठीक है कि नहीं, तो सबसे पहले मुझे कार का लॉक खोलना है। देन मैं फिर गया, मैंने देखा कि भाई कार में कुछ ऐसा तो नहीं कि पहले से कुछ ऑन तो नहीं है, फिर मैंने गाड़ी को स्टार्ट करा, है कि नहीं, स्टार्ट करने के बाद मैंने अपना सीट बेल्ट लगाया। तो सर मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा एक ऐसा प्रोसेस बता दीजिए सिंपली, जो पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, तो हम कभी भी किसी प्रोग्राम को देखें तो एटलीस्ट मतलब पूरा भी ना बता पाए, 70-80% तो हमें पता हो पहले से, ये पहले ये चीज है फिर ये चीज है फिर ये चीज है। करेक्ट। आप देखिए मतलब सर करेक्ट सिंपल वे में क्या है कि दो चीजों की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एक बात कर रहे हैं इंस्टेंस की, है ना, इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं हम किसकी, स्टैटिक की, ठीक है। तो स्टैटिक का एग्जीक्यूशन जो फ्लो चलता है वो डिफरेंट होता है, वो अलग प्रोसेस है। इंस्टेंस का जो एग्जीक्यूशन है दैट इज डिफरेंट थिंग। तो इंस्टेंस का एग्जीक्यूशन हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, जहां आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ओके, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, इंस्टेंस का एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहां पे बन रहा है, लाइन नंबर बोल दो आप, कहां पे बन रहा है, आई मीन जो नंबर दिया हुआ है सर 2 नंबर पे, 2 पे, ठीक है। तो जैसे 2 से अब इसमें देखेंगे 2 पे क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया। तो चूंकि ऑब्जेक्ट बनाते समय क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बट कंस्ट्रक्टर के टाइम पे अगर इंस्टेंस ब्लॉक हुआ तो वो भी एग्जीक्यूट होता है। तो अब स्टोरी ये आती है कि दोनों में से पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, सबसे पहले आपका इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इन्होंने क्या किया, देखिए थर्ड पे तो चलो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया है। आप यहाँ पे देखोगे जो 4th नंबर ये जो पुट किया है ना, ये क्या हो गया आपका, इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है।
इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अब इसमें देखिएगा कोई दूसरा भी इंस्टेंस ब्लॉक है, द आंसर इज यस। कहां पर है? यहां पर है। तो फिर आपका सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, एंड उसके बाद ये दोबारा से फिर से यहाँ पे आएगा, और अगर यहाँ से कोई इंस्टेंस मेथड कॉल कर रहे हैं हम लोग, तो दैट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। नहीं कर रहे सर हैं, सपोज यहाँ पे अगर 5 मेथड होते हैं, फिर कहाँ पे? अभी सॉरी हमने तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते फिर क्या होता? हाँ, तब पहला ऑब्जेक्ट करते तब यही फ्लो होता, सेकंड ऑब्जेक्ट मिलता है इसको, फिर से यही फ्लो फिर एग्जीक्यूट होगा। थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, फिर से यही सीक्वेंस जो मैंने अभी बताया कि पहले इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए भी इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे, जितने भी इंस्टेंस ब्लॉक हो, फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर से इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा, उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये दो चीजें इसमें एग्जीक्यूट होने वाली है, इंस्टेंस ब्लॉक एंड इट्स कंस्ट्रक्टर। तो जितने भी इंस्टेंस ब्लॉक होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, और जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे, जो कंस्ट्रक्टर तो जो कॉल कर रहे होंगे उस समय वही वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो 5 टाइम्स ये फ्लो एग्जीक्यूट होने वाला है आपका। गॉट इट? तो सर पहले इंस्टेंस ब्लॉक होगा, फिर इंस्टेंट हमारा कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर के बाद फिर कंस्ट्रक्टर के बाद फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर से कुछ कॉल कर रहे हैं तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके अंदर से कुछ कॉल नहीं कर रहे हैं तो दोबारा क्या आ जाएगा, मेन के ही अंदर आएगा और देखेगा कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या है। बाद में हमने सिंपल जो भी आपने लिख रखा होगा वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, वट एवर यू हैव रिटन। या आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाया है, दैट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। कोई इंस्टेंस मेथड ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल किया है तो दैट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद उसको मिलेगा वो चीज एग्जीक्यूट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद एक और ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर से कहानी शुरू हो जाएगी। इंस्टेंस ब्लॉक जितने भी होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के बाद जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इंस्टेंस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। whenever we are going to create the object of a class, the instance variable instance block instance constructor is going to execute। अगर हमने ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से किसी इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रखा है तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सर कॉल पे डिपेंड करता है कि पहले कौन सा प्रिंट होगा नहीं होगा। अब देखो आपने ये जो लिखा है पेरेंट पी इक्वल टू न्यू पेरेंट, हमने कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक को कॉल किया हुआ है? द आंसर इज नो। इंस्टेंस ब्लॉक को कॉल करने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, कंस्ट्रक्टर तो समझ पड़ रहा है कि न्यू ऑपरेटर से यहाँ पे कॉल हो रहा है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर मान लीजिए कॉल हो गया। इंस्टेंस अगर कोई मेथड है, जैसे इंस्टेंस मेथड कौन सा है? M1। तो अगर उसको आप कॉल नहीं कर रहे हो, तो वो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, जहां से आप कॉल करोगे तभी होगा। जैसे इन्होंने M1 को कॉल कर लिया, कहां से? इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर से, तो फिर ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर नहीं करते तो आपका नहीं होता। यहां से अगर कॉल करोगे तो p.m1 कॉल करना होगा। तो ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने। जो न्यू ऑपरेटर से आप लगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर लिखोगे वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इंस्टेंस मेथड अगर आपको कॉल करना है, वो भी मेन मेथड के अंदर से, तो इंस्टेंस के रेफरेंस, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही कॉल करना होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? एक तो इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, प्लस आपका क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर रहे, जस्ट वी आर राइटिंग द सिंटैक्स, न्यू ऑपरेटर फिर कंस्ट्रक्टर का नेम, यहीं से कॉल हो जा रहा है। ओके, तो एक्सप्लिसिटली क्या चीज कॉल होगी? इंस्टेंस मेथड। रिमेंबर दिस गाइस, इंस्टेंस मेथड। लेकिन सर पहले FIBB क्यों प्रिंट हुआ? SIBB तो हो सकता था ना सर पहले। कौन सा? नहीं, ये सीक्वेंस में होगा ना, सीक्वेंस में। इंस्टेंस ब्लॉक को एक सीक्वेंस में करेंगे, टॉप टू बॉटम।
मतलब जो पहले मिलेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, है ना, जैसे ना पहले जो मिलेगा इंस्टेंस ब्लॉक वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो पहले नंबर पे इंस्टेंस ब्लॉक कहां पर है, ये रहा, यहां से सॉरी यहां से यहां तक। तो पहले ये इसकी स्टोरी कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद देखेगा कोई दूसरा इंस्टेंस ब्लॉक है इसके अंदर, द आंसर इज यस। तो इंस्टेंस ब्लॉक आपका सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है टॉप टू बॉटम। सर ब्लॉक और मेथड दोनों सेम है क्या कि अलग अलग है? अलग अलग है ना, ब्लॉक और मेथड सेम नहीं है, ब्लॉक मेथड में बहुत डिफरेंस है। आप देखो यहाँ पे ये आपका ब्लॉक है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक, और मेथड तो स्टोरी अलग ही होती है। मेथड के साथ में तो मॉडिफाइड भी होते हैं, रिटर्न टाइप भी होता है, मेथड का नाम भी होता है, फिर आर्गुमेंट भी होता है, तब जाके उसकी बॉडी आती है। जैसे मैंने लिखा पब्लिक वॉइड m1, ये मैंने लिखा, आप देखो ना इसके अंदर तो मेथड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मेथड का मॉडिफायर है, रिटर्न टाइप है, मेथड का नेम है, आर्गुमेंट है, आप तब जाके इसका ब्लॉक शुरू हुआ है, राइट। और इंस्टेंस ब्लॉक में तो कुछ नहीं, ये देखो यहाँ पे, गॉट इट, ओके। सो गाइस अपने आप को इन्वॉल्व करो इसमें थोड़ा सा, इसको आप टाइप करो और फिर इसका जो आउटपुट है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ओके। एंड देन वट एवर प्रोसेस इज रिटर्न हियर उसको पढ़ो। whenever we are creating an object the following sequence of event will be performed automatically। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टेंस मेंबर्स का होता है टॉप टू बॉटम। या मेंबर से मतलब मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंबर्स में आपके सारी चीजें आ जाती हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस आई मीन इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस मेथड। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल असाइनमेंट्स एंड इंस्टेंस ब्लॉक्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। इंस्टेंस ब्लॉक टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा और इंस्टेंस वेरिएबल का असाइनमेंट भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम होगा। यस इसमें जो प्रोसेसिंग में जो नोट्स लिखा हुआ है इसमें लिखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टेंस मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी फर्स्ट टू 8 जितने भी है उसमें आ जाते हैं, राइट। लेकिन सर जैसे आप अगर हमसे पूछे कि बताओ ये फ्लो क्या है, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो है, तो हम कैसे आपको कैसे बताएंगे, मतलब हमारा क्या रहेगा, ये तरीका होगा? आपका फ्लो जाना चाहिए कि जहां ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है मेन के अंदर, आपको वहां से स्टोरी शुरू करनी है। मतलब पहले क्या, मतलब क्या वर्डिंग रहेगी हमारी? आई मीन from where we are creating the object we are creating na, the execution will start from where we are going to create the object। तो ऑब्जेक्ट कहां से क्रिएट किया आपने, मेन मेथड के अंदर से। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, इंस्टेंस ब्लॉक, जितने भी इंस्टेंस ब्लॉक है ना वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होंगे। देन सेकंड what is going to execute constructor, and in the third if any instance method we are going to execute that is going to call, that's it। आपको जब बताना है तो ये फ्लो रहेगा, आपको ये सब नहीं बताना होगा वहां पे कि जब भी आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, ये सारा नहीं है आपके सामने। द थिंग्स वुड बी समथिंग, अभी मैंने जो कल प्रोग्राम दिखाया था कि उन्होंने इंस्टेंस ब्लॉक लिख दिया, इंस्टेंस मेथड भी लिख दिया, कंस्ट्रक्टर भी लिख दिया, नाउ दे आस्किंग कि इसका आउटपुट क्या होगा, एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होगा। तो देन यू कैन टेल देम कि जहां से ऑब्जेक्ट बन रहा है वहां से स्टोरी इसकी स्टार्ट होती है। हालांकि सबसे पहले तो ये होता है इसमें कि इंस्टेंस मेंबर्स का टॉप से लेकर बॉटम तक आइडेंटिफिकेशन होता है। सेकंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट एंड इंस्टेंस ब्लॉक्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होगा। सो पहले इंस्टेंस वेरिएबल का असाइनमेंट होगा, है ना, वो भी टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम ही आपका ब्लॉक्स का एग्जीक्यूशन होगा, देन आपका कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन होगा। और उसके बाद अगर कोई इंस्टेंस मेथड हम कॉल कर रहे हैं थ्रू द कंस्ट्रक्टर दैट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो ये जो 3 स्टेप्स लिखे हैं, सो वी कैन टेल लाइक दिस। आई मीन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई आपको पूछने जा रहा है इसके बारे में, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, कोड लिखने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि आपको एटलीस्ट इंस्टेंस वेरिएबल आपने वर्ड सुन लिया, इंस्टेंस ब्लॉक आपने सुन लिया,
कंस्ट्रक्टर आपने सुन लिया और इंस्टेंस मेथड आपने सुन लिया। अगर सारे कुछ दिए हुए हैं एक ही प्रोग्राम में तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा? तो आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पकड़ना है कि अगर इंस्टेंस की बात कर रहा हूं तो यहाँ स्टैटिक में कहानी डिफरेंट हो जाती है। तो आपको कहां से पिक करना है? जहां ऑब्जेक्ट बन रहा है उस क्लास का। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर से पहले इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जितने भी इंस्टेंस ब्लॉक हैं आपके इसमें, दोज आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर कंस्ट्रक्टर का आएगा एंड थर्ड नंबर इफ यू आर कॉलिंग एनी इंस्टेंस मेथड सो दैट विल कम। दैट्स इट। तो आपको मेन मेथड से ही स्टोरी पकड़नी है। अगर आप इंस्टेंस की बात करोगे तो स्टैटिक के केस में स्टोरी डिफरेंट है कि वहां इंस्टेंस ब्लॉक आपके क्लास लोडिंग के टाइम पे मेन से भी पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ओके गाइस, तो इस प्रोग्राम को आपको बनाना है। यू हैव टू क्रिएट दिस प्रोग्राम, राइट समवेयर, सी ऑब्जर्व द आउटपुट की व्हाट आउटपुट इट्स प्रिंटिंग। उसके बाद ये प्रोसेस को पढ़ने की ट्राई करो कि इस प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन इन दिस प्रोसेस। इन्होंने लाइन नंबर भी मेंशन किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टेंस मेंबर टॉप टू 1 से लेकर 8 पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया है कि कहां से 1 2, ये भी देखो स्टोरी कहां से शुरू हो रही है, मेन से 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। सो 1 to 8 सारे आपके मेंबर्स एग्जीक्यूट होंगे। ओके, स्टोरी कहां से हो रही है? मेन से शुरू हो रही है इंस्टेंस के केस में। देन उसके बाद इन्होंने बोला कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल असाइनमेंट इंस्टेंस ब्लॉक फ्रॉम टॉप टू बॉटम 9 to 14। आप देखो इस समय 9 पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, फिर 9 से लेकर 14 तक कहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो सी दैट थिंग्स, 9 यहाँ पर है ना। देन 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, 9 to 14। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर का नंबर आता है एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दी कंस्ट्रक्टर आपके पास यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएगा पी के अंदर। अब इस पी से कुछ और अगर कॉल करना है, फर्दर प्रोसेस यू कैन कंटिन्यू। सो अंडरस्टैंडिंग फ्लो क्या होना चाहिए? पहले आप प्रोग्राम बनाओ, ओके, क्रिएट दी प्रोग्राम, जैसा इसमें लिखा हुआ वैसा प्रोग्राम बनाओ, रन इट, सीधा आउटपुट, फिर उसको प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है उसको समझो। कोई अगर चीजें मिसमैच हो रही है ना इससे और इसके आउटपुट में और इसके नंबरिंग में, देन प्लीज लेट मी नो, वी कैन डिस्कस एंड वी कैन अंडरस्टैंड, दैट्स इट। और इसके बाद आप आगे बढ़ जाओ उसमें, ठीक है जी। डोंट हैंग विद हेयर ओनली कि यार हम यहीं पे स्टक रहे, ठीक है। आफ्टर दैट इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अगर एक क्लास पेरेंट है एक चाइल्ड है, उसमें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा इंस्टेंस का, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। इसकी जो प्रोसेस, होल प्रोसेस इज रिटर्न। देन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज, किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर वर्सेस इंस्टेंस ब्लॉक क्या है। ओके, तो होल स्टोरी इज गिवन। ओके, रूल टू डिफाइन, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के रूल्स क्या हैं, सिंगलटन क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर कमिंग। ओके, so I think for the today I have done, guys. Please do the practice for instance. सर अगर अभी मैंने एक प्रोग्राम शेयर किया, उसमें से अपन ने स्टैटिक ब्लॉक बना लिया और एक इंस्टेंस बना लिया, तो इंस्टेंस वाला तो रन ही नहीं हो रहा था। इंस्टेंस वाला रन क्यों होगा? आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। इंस्टेंस का एसोसिएशन है किसके साथ पवन? अच्छा हाँ सर, ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन इंस्टेंस का लिंक ही ऑब्जेक्ट से है और इसमें ऑब्जेक्ट ही हमने कहीं इसका बनाया नहीं है। और कंस्ट्रक्टर के लिए, सॉरी, स्टैटिक ब्लॉक के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये तो जब क्लास लोड होगी ना उसी समय एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बहुत सही चीज आपने की है ना। अगर ये मिक्स हो रहा हो तो यू आर वेरीफाइड, दैट्स अ गुड। अब आप इसका ट्राई करिए, इंस्टेंस ब्लॉक करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाइए और आप देखिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका तुरंत। यस सर, यस सर, आगे समझ में आ गया। यू विल गेट टू नो दिस। ओके, तो ऐसे वेरीफाई कर लेना है आपको कि स्टैटिक की स्टोरी अलग है, इंस्टेंस की स्टोरी अलग है। स्टैटिक की स्टोरी क्लास से एसोसिएट है, इंस्टेंस की स्टोरी ऑब्जेक्ट से एसोसिएट है ना। तो स्टैटिक की स्टोरी क्लास से शुरुआत होती है, इंस्टेंस की स्टोरी उसके ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है। और क्लास से जनरली
कुछ बहुत वन टाइम एक्टिविटी काइंड ऑफ थिंग्स होती है, और अगर आप इंस्टेंस की बात करोगे तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओगे सर उतने नंबर ऑफ टाइम से ये कॉल होगा। यस सर कितने टाइप्स के हैं हमारे फ्लो कंट्रोल? एक स्टैटिक हो गया, एक इंस्टेंस हो गया। दो ही हैं, केवल दो ही हैं, इंस्टेंस और स्टैटिक। ये टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग। इंस्टेंस वेरिएबल आने चाहिए, स्टैटिक वेरिएबल आने चाहिए, इंस्टेंस ब्लॉक आना चाहिए, स्टैटिक ब्लॉक आपको आना चाहिए, इंस्टेंस मेथड आपको आना चाहिए, स्टैटिक मेथड आने चाहिए। तो ये दो पेयर आपके जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट इन दी जावा। सर ऑब्जेक्ट बनाते ही वो रन हो गया सर। ठीक है सर। अब मजे की बात एक और देखो पवन, एक और ऑब्जेक्ट बनाना, वो फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, इंस्टेंस ब्लॉक जितने नंबर ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने नंबर ऑफ टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, और ठीक। स्टैटिक आपका केवल वन टाइम। हाँ, वन टाइम। तो आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो बार बार आपको ऑब्जेक्ट टाइम क्रिएट करते समय कुछ आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। आपको वन टाइम कराना है, वो भी क्लास लोडिंग पे, ओनली वन टाइम, तो उसके लिए आप स्टैटिक ब्लॉक यूज कर लिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट आपकी फ्रिक्वेंटली है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी कर रही है, तो ऑब्वियसली उसको इंस्टेंस ब्लॉक में जाइए। रिक्वायरमेंट आपकी वन टाइम है तो आप स्टैटिक ब्लॉक के लिए जाइए। गॉट इट? तो दो ही है काजल, डोंट कंफ्यूज, है ना, दो ही चीजें हैं आपकी, है ना, ओनली टू थिंग्स आर देयर, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। बट ये हमें डाइजेस्ट तभी होगी जब प्रोग्राम आप देखने से नहीं होगा, आप बनाना शुरू करना है इसका। ठीक है, ट्राई टू मेक दी प्रोग्राम, आप इसको है ना टाइप करो, है ना, देख देख के, और देन एक्चुअली वी कैन डिस्कस। आप इसमें जो स्टोरी लिखा है, गो थ्रू दैट स्टोरी, ट्राइंग टू पुट दी, जो जिसमें नंबरिंग दी है उससे आप समझने की कोशिश करो। पेरेंट चाइल्ड में अभी मत जाना, क्योंकि अभी नॉर्मल सिंगल फ्लो अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो फिर पेरेंट चाइल्ड में तो और हौच-पौच हो जाएंगे हम लोग। तो पेरेंट चाइल्ड में कुछ टाइम बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी आप सिंगल फ्लो को ही समझने की कोशिश करो कि एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इंस्टेंस ब्लॉक है एंड वेरिएबल्स भी हैं एंड कंस्ट्रक्टर भी है, तो उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। ठीक है, अभी पेरेंट चाइल्ड का आप छोड़ दो, नॉर्मल आप इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो समझने की कोशिश करो, और सिंगल इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो आप स्टैटिक कंट्रोल फ्लो समझने की कोशिश करो। दैट्स इट। एनी क्वेश्चन? काजल, चांद, एनी क्वेश्चन? पहाड़ सिंह, प्रदीप, विभय? No question. So I think for the today I have done. वो सर स्टेंस ब्लॉक का जब जब अपन ऑब्जेक्ट वो क्रिएट कर रहे हैं उसका, तब तब वो रन हो रहा है। तब वो रन हो रहा है, क्योंकि उसका जो एसोसिएशन है वो ऑब्जेक्ट से है, और स्टैटिक ब्लॉक का एसोसिएशन वो क्लास लोडिंग से है। मतलब लोडिंग के टाइम एक ही बात तो लोड होती है क्लास, राइट? यस सर। तो वो उसी समय एग्जीक्यूट हो गया। अब वो डिस्ट्रॉय होगा जब क्लास अनलोड होगी तब। सर वो कैसे कर सकते हैं सर? जैसे कि हर एक मैसेज से पहले एक मतलब स्टेंस ब्लॉक वो होना चाहिए एग्जीक्यूट, वो शायद फिर मेथड में देना पड़ेगा किसी। हर एक मैसेज से पहले, मैसेज से पहले क्या मतलब है कोई आपका? एक मतलब जैसे सम करा रहे हैं तो उससे पहले एक मैसेज आए, फिर डिवाइड करा रहे हैं फिर उससे पहले एक मैसेज आए, सम में एक कॉमन मैसेज आता रहे। ये जो सम बोल रहे हो, डिवाइड बोल रहे हो, ये अपने आप में मेथड है, क्या बोलते हैं? हाँ, मेथड। जब ये मेथड है, जब ये मेथड है ना, ये क्या है, मेथड है। मेथड कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करोगे आप, है ना, यू विल कॉल थ्रू द ऑब्जेक्ट रेफरेंस, है ना। हाँ। तो वो तो आप उसमें भी लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लिख सकते हो और इंस्टेंस के अंदर भी लिख सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। हाँ, ठीक है। तो उसके लिए तो कंस्ट्रक्टर सफिशिएंट है, इंस्टेंस ब्लॉक बनाने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, राइट? यस। लेकिन कंस्ट्रक्टर, हाँ, वो फिर आपका हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्यों, एडिशन, डिवीजन, ये सब तो आपका एक ही ऑब्जेक्ट से कॉल हो जाएंगे सारे, तो इनके लिए इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर भी फेल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक ही बार एग्जीक्यूट होंगे। एक ऑब्जेक्ट बना लिया, बस एग्जीक्यूट हो गए।
लेकिन एक ऑब्जेक्ट से आप कितने भी नंबर ऑफ मेथड कॉल कर सकते हो ना। हाँ लेकिन आपको चाहिए कि जब भी मैं ये मेथड कॉल करूं हाँ, उससे जैसे पहले कोई मैसेज आ जाए तो वो मेथड के अंदर ही डाल दीजिए आप वो मैसेज। आपका जो लॉजिक है उससे पहले वो मैसेज डाल दीजिए, जहाँ पे आपका बिजनेस है उससे पहले मैसेज डाल दीजिए, तो दैट विल एग्जीक्यूट। ओके, सो आई होप कि हम लोगों का नॉलेज थोड़ा सा वाइस हुआ होगा टू अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। ओके, और I do have this, everyone is having personal chat, तो किसी को भी अगर ये लग रहा है कि यार थोड़ा सा समझ कम आया तो प्लीज लेट मी नो, उसमें थोड़ा फीडबैक जरूर अपना शेयर करें, तो आई विल गेट टू नो कि किस किस को कितना समझ आया, उसके अकॉर्डिंग हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो आई थिंक टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, कि कंस्ट्रक्टर की स्टोरी हम लोग सीखेंगे कि क्या कंस्ट्रक्टर की स्टोरी है, quite important things, है ना, so we'll discuss. Thank you so much guys for giving your time. So again we'll meet tomorrow. Thank you, bye. Bye sir. Thank you. Thank you sir. Bye. Please do the practice by seeing the notes, और जो भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोग्राम शेयर किए उनकी मदद से please try to do the practice. Thank you, bye.